Yes. Meantime. Good afternoon to the speaker of the day, C.S. Shivani Agarwala, and to all the delegates. I welcome you all to the second session of Wisdom Wednesday. The thought behind doing this virtual program is to go back to the basics of each and every topic. At times, what happens, we do regular programs in the institute, but then there are the faculties who come has at times bias that they are talking to the practicing chartered accountant or the chartered accountant from industry, and they have a certain knowledge level of knowledge about the topic. So at times they skip the basic part of any topic and they straight away go to the detailed part of that. But for the members, new members who are coming to the practice or to the industry, or for that purpose, for the members who are coming to the profession after a break, it is important that we go back to the basics and talk about the basic. So that's why we are doing this Wisdom Wednesdays. And today we have a renowned faculty with us in GST who will be taking us through the GST laws and basics of GST law. Thank you so much, Sivanji ji, for giving your consent and being part of this initiative. Over to you. Kindly start your session. Um, Thank you very much, Chairman Mayur, EIRC, for this wonderful opportunity. I've been given to understand that the topic for today is back to basics on GST. It's been more than 7 years ever since this law was put in force. It was the 1st of July 2017, and today, as we begin the new financial year of 2026, as a student of the subject in law who's been doing indirect taxation for the last 20 years, the first and foremost thing I would like to begin with is I am a student of this subject. I'm no expert on this law. But yes, uh, during the beginning, in 2017, when we used to address sessions on GST, and even henceforth, we used to keep saying that the law is evolving. Now, I would say, as a professional who's been dealing with this subject day in and day out across the spectrum, whether it's compliance or high stake cases, cert Caesar, right up to the Honorable Supreme Court, I would say now GST is tightening. Um, Many congratulations to EIRC for taking this wonderful initiative of Wow Wednesday. And it's very important that one gets back to the basics. In fact, I'm reminded of a little incident. My son will start his summer vacation soon, and the teacher told me that during this summer vacation, make sure that he gets back to his basics. And that's when I realized that even as a faculty, how important it is that the base, जिस नींव पे आपने पूरी इमारत खड़ी करनी है, वो बहुत important रहे. Since it's the beginning of the financial year, I would also be taking about 10 minutes to discuss some very important pointers in the GST law, which today, either as registered assessees under GST, or for that matter, as practitioners of GST, or even chartered accountants in industry, would like to have thrown some light on. The most important tenet of GST today, which comes across to all professionals, is input tax credit. And when we talk about input tax credit, we all know that the department goes no holds barred approach as to जितना आपने GST अपने 3B में लिया है विजवी आपके GSTR 2B में जितना आ रहा है वो सही है कि नहीं. So to begin with, just allow me 1 minute. I need to put something off. Right. Very importantly, what is input tax credit? इनपुट टैक्स क्रेडिट वो आधार है जिसपे जीएसटी की नींव खड़ी है. और इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमने हमेशा ये बताया गया है कि भाई अगर आपके बिजनेस यूज के लिए है तब वो आपको आईटीसी मिल जाएगा. द मदर सेक्शन, एंड इनफैक्ट देर इज वन takeaway I'd like to give to everyone who's tuned in today or who would be watching this recorded session is always keep the GST law. This is a handbook I always carry with me. This is my Bhagavad Gita as far as GST is concerned. In spite of being in practice for 20 years, if today you were to ask me that, ma'am, can you give me an answer? I would always open this, read the law, and then get back to you. So never ever be in a haste to give an answer as far as GST is concerned. It is very okay for you to say that let me go through the law and get back to you. I'll give you a small instance and then I'll come back to ITC. Uh,
The Finance Bill 2026 received the presidential assent, and there have been some changes which have been made effective right from the 30th of March. One such change was vis-a-vis the concept of intermediary. So, intermediary is basically a commission agent for the sake of brevity. And if you are a commission agent who's basically giving services to someone abroad, you are required to pay GST. Now the law has been amended and you need not pay GST. So imagine someone who has been paying GST effective from 1/7/17. Now he does not have to pay. The law has been amended. And this was a subject matter of discussion before various high courts. And hence, the GST law is very dynamic. One needs to be on their toes always to understand the nuances of this law. And I would say never be in a rush. No fastest finger first in GST. हमने बहुत देखा है कि कोई नोटिफिकेशन आए, सर्कुलर आए, कोई भी इंटीमेशन आए, पूरे व्हाट्सएप और लिंक्डइन के पोस्ट भर जाते हैं. यू टेक अ स्टेप बैक एंड अंडरस्टैंड द intricacies of law, and that is what is going to take you forward. So as long as you are uh, dedicated to the cause of learning the law, believe me, sky is the limit. नाउ जब अभी मैंने बताया नींव नींव माने आधार जिस पे जीएसटी टिका हुआ है, दैट इज सेक्शन 59 विच इज बेसिकली सेल्फ असेसमेंट. नाउ जीएसटी में ये हमें बताया गया है कि भाई सेक्शन 59 के अनुसार आपने जो भी कुछ आप कर रहे हो, बेसिकली हम आपकी बात को मंजूरी देते हैं. अगर हमें लगा कि इसमें कुछ गलत है तब हम असेसमेंट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 61. हम आपका ऑडिट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 65. उससे भी अगर हमारा मन नहीं भरा तो फिर हम आपका आगे चल के सर्च कर सकते हैं अंडर सेक्शन 67. सो अनलाइक द प्रीवियस रेजीम ऑफ वैट, जहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर कि सालाना असेसमेंट होता था और वहां पे आपके असेसिंग ऑफिसर्स हुआ करते थे, जीएसटी में असेसमेंट का नियम नहीं है. एवरीथिंग इज सेल्फ असेस्ड. अगर उन्हें दरकार पड़ा देन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 61 दे विल इनिशिएट द असेसमेंट ऑफ योर रिटर्न्स. और अगर आप पूरे एक्ट में सेक्शन 2 देखेंगे जहां पे सारे डेफिनेशंस आए हुए हैं, कहीं पे भी आप देखेंगे कि आपको असेसमेंट ऑफिसर बोल के कोई भी डेफिनेशन नहीं मिलेगा. सो द सेकेंड पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक इज दैट भाई जीएसटी में आज हम रिटर्न भरते हैं. आप 3B देखिए, आप GSTR 1 देखिए, इवन इफ यू टॉक अबाउट GSTR 9 एंड 9C, वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रही हूँ दैट मेरे ही ऑफिस में अगर कोई 2 रिसोर्सेस को GSTR 9 भरना था एक ही कंपनी का एक ही कंपाइल्ड डेटा से, आप बिलीव करिए दोनों का दोनों 9 डिफरेंट हो सकता है. वाई? बिकॉज सच इज द लॉ. इतना फॉर्मेट्स है उसमें और इतने सारे इंटरप्रिटेशंस हैं. आज भी हम यही स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई नॉन जीएसटी को एग्जेम्प्ट में डालेंगे, नॉन टैक्सेबल इज इट एग्जेम्प्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आपकी जीत उसमें है कि जब आपका असेसमेंट हो या ऑडिट हो तो भाई आप डिपार्टमेंटल ऑफिसर को या क्लाइंट को आप समझा सकें कि आपने जो भी किया आपने क्या किया और क्यों किया. इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर आपने केवल मैकेनिकल तरीके से कर दिया देन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. Most of the notices under GST today are not officer driven, they are AI driven. अब अगर आपने GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 9 9C देखा है, आपने देखा होगा कि वो रिटर्न अलग अलग रिटर्न्स हैं और सब में आप अलग अलग सेट ऑफ डेटा डालते हैं. तो जो अभी मैंने असेसमेंट की बात करी अंडर सेक्शन 61, जब वो आपके रिटर्न्स को असेस करते हैं वहां पर ये सारा डेटा निकालेंगे आपके रिटर्न्स से. तो लॉट ऑफ दिस इज एआई ड्रिवन. एआई ड्रिवन में कई ऐसी सारी चीजें आएंगी जहां पे बहुत इलॉजिकल हो. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द लॉ. Now, coming upon the very important parts as far as GST is concerned. First is input tax credit. Now, why input tax credit? That is basically the pain point for the department and for the assessee. भाई ये ब्लॉक क्रेडिट का एक कॉन्सेप्ट है. क्रेडिट अगर आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए है तो रिवर्सल का कॉन्सेप्ट है. अब आपके GSTR 3B और GSTR रिटर्न्स में हमने देखा है कि भाई कोई भी ब्लॉक क्रेडिट आए तो उसको आप एक बार से हटा नहीं सकते, उसको आपको अवेल करके आपको ब्लॉक में डालना होगा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये हमारा बेसिक का सेशंस है, कि ये आईटीसी का आधार क्या है. द वेरी बेसिक एज फार एज इनपुट टैक्स क्रेडिट
as understood under the GST law, it is section 16, which is the mother section. एंड इसमें आपके 4 कंडीशंस थे और 1/1/2022 से इसमें और 2 कंडीशंस आ गए हैं. सो सबसे पहला कंडीशन जब हम सेक्शन 16 की बात करते हैं इज व्हाट this I'm talking about section 16(2), which starts with a non-obstant clause. The first condition is that the assessee who's taking the ITC has to have a valid tax invoice or a document. तो भाई आपने जिस भी चीज का ITC आपने लिया है उसका टैक्स इनवॉइस या डॉक्यूमेंट या डेबिट नोट आपके पास होना चाहिए. ऐसा अगर है कि भाई आपने सर्विस रिसीव कर ली लेकिन आपके पास वो इनवॉइस नहीं है तब आप ITC नहीं ले पाएंगे. सेकेंड कंडीशन, ही हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज. रिसीव्ड होना बहुत जरूरी है. अगर आपने इनवॉइस पा लिया है लेकिन गुड्स आपको अभी तक नहीं मिले हैं, देन इन दैट केस will not happen. इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? अंडर GST वी नो दैट 1 टैक्स पीरियड इज 1 month. तो से फॉर इंस्टेंस अगर आपके हम बात करते हैं अप्रैल महीने की, तो सामने वाले ने 30 तारीख का इनवॉइस रेज किया, वो आपके पोर्टल में भी आ गया, उसने आपको पास ऑन भी कर दिया, आपके GSTR 2B में भी दिख गया, लेकिन वो मटेरियल आते आते आपके पास 10 मई हो गए. तब आपको 10th मई को क्योंकि रिसीव हुआ है आप उसका ITC नहीं यूज कर पाओगे. यू विल बी एलिजिबल टू टेक दैट ITC only in the tax period of May and not in the tax period of April. So receipt of goods and services is very important. The third condition as it's provided is that the ITC, yes, the second, one of the important conditions they then say is that the tax has actually been paid. अब ये by the doctrine of impossibility आज के दिन भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है GST के पोर्टल पे जहां पे एज अ रेसिपिएंट मैं ये देख पाऊं या मैं समझ पाऊं कि मेरे सप्लायर ने जितना टैक्स मुझसे चार्ज किया उसका भुगतान सरकार को किया है कि नहीं. यू कैन पुट इन द GSTIN ऑफ योर सप्लायर ऑन द GST पोर्टल. वहां पर आप देख पाएंगे कि उनके GSTR 1 और GSTR 3B के फाइलिंग स्टेटस क्या है. लेकिन you will not be in a position to understand whether in that particular 3B, which is shown as filed on the portal, whether he has actually paid the tax which he has collected from you. So hence, this is a bit of a challenge, but one of the important conditions is that your supplier has made the payment. Fourth condition which existed till the 31st of December 2021 was that the receiver has filed the returns. अब 1/1/22 से इन्होंने 2 कंडीशंस और ऐड किए और उसमें एक कंडीशन ये था दैट द डिटेल्स ऑफ द ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई communicated to such registered person has not been restricted. और दूसरा था that the details of the invoice as furnished by the supplier in the outward statement has been communicated to the recipient. माने आपके 2B में आना चाहिए. सो इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक ये दिया हुआ है कि आज के दिन अगर आपके GSTR 2B में कोई भी ITC नहीं आती है तब आपको उसका बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं मिलेगा. बट देर इज वन टेक अवे फ्रॉम हियर विच इज ये प्रावधान जो कि आपके 2B में कम्युनिकेट होना चाहिए ये आपका आया था 1/1/2022 से. इन अदर वर्ड्स 1/1/2022 के पहले ये प्रावधान नहीं था. कोई भी लॉ में अगर कोई प्रोविजन प्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट की गई है इसका मतलब ये है कि प्रायर टू सच डेट द आइडिया और द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू हैव द लॉ एज इज. सो अगर 1/1/2022 के पहले 2B में कम्युनिकेशन वाली बात मैंडेटरी नहीं थी, इन दैट केस आपके जितने लिटिगेशन हैं प्रायर टू 1/1/22 यू कैन ऑलवेज टेक दिस ग्राउंड दैट द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 as it stood from the period 1/7/17 till 31st December 2021 never mandated the requirement that the ITC has to flow in the GSTR 2B. Also, let me bring your attention to a very important section, which is section 41 subsection 2, which was made effective from the 1st of October 2022. For the first time ever, in this section, they said that if the ITC has to be reversed by the recipient if the supplier has not made the payment of the same. Again, this particular provision was made effective only from 1/10/2022
prior to which this section was not there. In other words, ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं जिसके बेस पर डिपार्टमेंट किसी रेसिपिएंट से उसकी आईटीसी रिवर्स कराए अगर उसके सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया है. So if you are practitioners who are dealing with such cases जहाँ पे ITC को रिवर्स करने का नोटिस आया है और डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन एंड द पीरियड इज प्रायर टू 1/1/22, you should refer to the section 16(2) as it stood then and also refer to section 41 subsection 2. क्योंकि हम आईटीसी के मुद्दे पे हैं, लेट मी ऑल्सो रन यू थ्रू अ फ्यू अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. एक नंबर वन, जो आईटीसी पे आज के दिन कैसे पोर्टल एक्ट करता है. पहले जब वी वर द अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ जीएसटी तो हमें ये समझाया गया था या हमारी ये समझ थी कि भाई आपको तो आईटीसी अगर ब्लॉक्ड है, से फॉर एग्जांपल गाड़ी खरीदने पे, एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, क्लब मेंबरशिप पे, गाड़ी भाड़े पे जो आप टैक्स का भुगतान करते हैं, ऑल ऑफ दैट इज ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5. तो भाई अगर आपका ब्लॉक्ड है तब आप सीधा उसको एक्सपेंस में डेबिट कर दीजिए. बट नाउ वन हैज टू बी वेरी माइंडफुल. दे हैव मेड इट वेरी क्लियर कि जितना भी आईटीसी आपके 2B के माध्यम से आ रहा है, let it flow under the relevant column and the table in GSTR 3B. Whatever out of that entire bucket of ITC is blocked, you have to show that under permanent blocked ITC. Certain items which you feel are not eligible to be taken in that tax period, आप उसको temporary reversal में दिखाइए. अब आप पूछेंगे मैम ऐसी कौन सी आईटीसी है जो मेरे 2B में आ गई है लेकिन मुझे अभी नहीं लेनी है, लेकिन बाद में मैं ले सकती हूँ. सो आई गेव यू द एग्जाम्पल कि सामने वाले ने अप्रैल महीने में आपको मटेरियल्स भेज दिए, इनवॉइस आपका कट गया. On that note, kindly note that in GST, the tax invoice always travels with the goods. Service के केस में आपके पास 1 महीने का टाइम होता है to issue the invoice after the completion of service. So hence, अगर आपने देखा कि अप्रैल में आपके 2B में आया है लेकिन आपको माल रिसीव ही नहीं हुआ है, then in the tax period of April you will not take that ITC, you will take that ITC in the month of May. तो आपके 2B के माध्यम से जो आपके 3B में आ गया है इन द टैक्स पीरियड ऑफ अप्रैल, आप उस आईटीसी को टेम्पररी रिवर्स कर देंगे और फिर आप नेक्स्ट मंथ उसको लेंगे. देयर इज ऑल्सो एन आईटीसी रिक्लेम रजिस्टर विच इज मेंटेन्ड ऑन द पोर्टल. So it's very important how you navigate through the portal in terms of filing your returns. Gone are those days कि आप randomly उसको ITC को blocked में डाल दो या आप उससे avail ना करें. So these are certain things you have to be very very mindful of. फिर एक अधिकतर क्वेश्चन आती है ब्लॉक्ड क्रेडिट पे. सफारी रिट्रीट्स का भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जहाँ पे उन्होंने इस मुद्दे पे ऑन कंस्ट्रक्शन सर्विस काफी जम के चर्चा की थी. One or two important points when section 17 is concerned. हमने बताया भाई if you purchase a car आपको नहीं मिलेगा unless otherwise specified. और कब मिलेगा आपको गाड़ी का? सपोज आप कोई ड्राइविंग स्कूल चला रहे हो या आपकी गाड़ी को खरीदने और बेचने का काम है. इसके अलावा क्लब मेंबरशिप, रेंट अ कैब, ये सब कुछ एक सर्विसेज है विच आर ऑल ब्लॉक्ड, और जहाँ पे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में मिलेगा. वन इज कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और इस मुद्दे पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है. सो इट्स वेरी सिंपल दैट व्हेन वी टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन सर्विस, I will try to read it out from the law so that you have a little more clarity here, and I will specifically go to section 17(5) and talk about those services which are vis-a-vis your construction service. So 17(5)(b), they go on to say that goods or services or both received by a taxable person for construction of an immovable property other than plant and machinery on his own account, including when such goods or services or both are used in the course of furtherance of business. And under the explanation, they define what is construction, and construction includes reconstruction, renovation, addition, alteration, repair to the extent of capitalization to the said immovable property. And they also later in explanation go on to define what is plant and machinery. So what they are trying to say here is that any goods or service, सीमेंट हो, आपके बाली हो, आपके कुछ भी हो, या सर्विस चाहे आर्किटेक्ट का हो, इंटीरियर डिजाइनर का हो, सिविल इंजीनियर का हो,
अगर आपने लिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी other than plant and machinery. Now, what is construction? The ambit of construction is very wide. Construction includes repair, maintenance, renovation, alteration, everything to the extent capitalized to the said immovable property. So, यदि आप एक ऐसे असेसी हैं जिसने एक कंस्ट्रक्शन का काम किया, कंस्ट्रक्शन ऑन ओन अकाउंट किया, मान लेते हैं मैं अपना ही उदाहरण दूं, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम गेटिंग माई ऑफिस डन and I undertake certain expenses. Those expenses are in the nature of cement, sand, marble, tiles, and also in the nature of interior designer expenses, civil, architect, etc. And they are used for my office. And these expenses are capitalized to the said immovable property. Then none of the GST that I've paid on these expenses will be eligible as an ITC to me. Now, it comes as a surprise to many that in an example where I am building a mall, which I'm then letting out, and I am paying GST on my output services, why is it that I am not being allowed the ITC, which is actually paid against the GST on my services, which are used to make that particular mall? So the idea is very clear that they will not allow you because land and building per se is a state subject, and the service out of land and building is exigible to GST as an output, but whatever you put in the land and building will not be allowed as an ITC. The Honorable Supreme Court, in the case of Safari Retreats, laid down a very beautiful judgment, and they spoke about the functionality test कि भाई आपका अगर प्लांट और मशीनरी आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई करती है, तो आप हर केस में देखें कि आपने जिसका कंस्ट्रक्शन किया है क्या आप उसको प्लांट और OR मशीनरी कह सकते हैं. तो इतनी चर्चा उन्होंने की, इट वॉज अ ब्यूटिफुल जजमेंट, बट देन द लॉ वॉज रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडेड, और आज के दिन प्लांट एंड मशीनरी है. आई एम नॉट गेटिंग इनटू द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, बट ऑल इन ऑल कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आपका जो भी कुछ खर्चा है, यू विल नॉट बी गेटिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन दैट. And plant and machinery का अगर है, then you are eligible to take the ITC, and they have gone on also to define an explanation to section 17(5) that what do you mean by the plant and machinery. Now coming to, we spoke about the fact that GST is based on self-assessment, section 59. We spoke briefly about input tax credit. Now let me take you through the taxable event under GST. As we know, this is a very basic course, so I'm not getting into the minutiae, but if I was to give you an overview of the taxable event, let me begin with the erstwhile regime. Under excise, the manufacturing का जो एक्टिविटी था, that used to be a taxable event. सर्विस टैक्स के regime में rendition of service था. जब आप सेल टैक्स की बात करते थे तो सेल था, ट्रेडिंग. अब जैसी जीएसटी आया, एज वी नो दैट जीएसटी इज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल दीज erstwhile laws, और जीएसटी में आपका टैक्सेबल इवेंट है सेक्शन 7, and section 7 goes on to define that what is supply. Again, if I was to run you through the definition of supply, it's a very broad definition which includes a lot of activities within itself, and also there are 3 schedules to this particular section 7. और एक शेड्यूल आपको बताता है, विल कम टू द शेड्यूल, बस पहले मैं आपको 7(1)(a) को ब्रीफली पढ़ के बताऊं. दे से दैट इट इंक्लूड्स, अगेन इट्स एन इंक्लूसिव क्लॉज, माने इतना तो है ही, इसके अलावा भी हम कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं. ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, सच एज सेल, बार्टर, एक्सचेंज, ट्रांसफर, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, मीन्स 8 एक्टिविटीज तो यहाँ पे वो कवर ही कर रहे हैं. मेड for a consideration by one person to another in the course of furtherance of business. So what is the definition comprised of? It's an inclusive clause. That means इसमें और भी add हो सकते हैं. They mention 8 type of supplies or activities which form a part of your supply. The third aspect is it has to be made for a consideration being defined under section 2 of the act, which includes a non-monetary consideration made by one person to the other in the course of furtherance of business. तो ये भाई आपके सप्लाई का डेफिनेशन है. कंसिडरेशन को जैसे मैंने आपको बताया हैज बीन डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2. एंड अगर मैं आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ के बताऊं जो कि आपके सेक्शन 2 में आया है, विच इज अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन. अगेन इट इंक्लूड्स
any payment made or to be made, whether in money or otherwise. And the second part says the monetary value of an act of forbearance in respect in response to or inducement of the supply, whether by the recipient, etc. So यहाँ पर आपके monetary और non-monetary दोनों conditions satisfy हो गए to come under consideration. इसका एक example अगर देना है तो say for example if today like I am giving a talk, किसी आपको बहुत पसंद आ गया, so आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई मैम आपका जीएसटी बहुत स्ट्रांग है, मेरा इनकम टैक्स बहुत स्ट्रांग है, और हम लोग एक ऐसा कुछ करते हैं कि भाई अगर आप मेरा जीएसटी देख लेंगे तो हम आपका इनकम टैक्स देख लेंगे, वी डोंट नीड टू पे ईच अदर, वो ईच असाइनमेंट टू असाइनमेंट बेसिस पे क्रॉस होगा. सो इवन दैट फॉर्म्स विद इन द एम्बिट ऑफ सप्लाई. अच्छा, सेकंड ये बोलते हैं एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर constituent or vice versa for cash deferred payment or valuable consideration. Now 71AA is personally very very close to my heart, और इसका मैं आपको एक छोटा सा स्नैपशॉट देती हूँ. ये 71AA बाद में लाया गया था with retrospective application, and this was precisely introduced in 21st 12 2021 with effect from 1/7/17. अब क्यों हुआ था? आपने सुना होगा द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ द कैलकाटा क्लब लिमिटेड, जहां पे उन्होंने उदाहरण बहुत विस्तार रूप में हमें बताया कि क्लब और मेंबर आर वन एंटिटी बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी. तो आज अगर क्लब और मेंबर आपस में कुछ भी सर्विस करते हैं तो उसको हम सर्विस नहीं कहेंगे. इट इज लाइक शिवानी शाह गिविंग अ सर्विस टू शिवानी शाह एंड एसोसिएट्स व्हिच इज अ प्रोप्राइटरी फर्म. सो इसको लेके बहुत लंबा चौड़ा लिटिगेशन रहा. अल्टीमेटली इट वाज हेल्ड दैट देयर शुड बी नो सर्विस बिकॉज दो लोग ही नहीं हैं ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी. And I'm very proud to say that my firm has been responsible for taking out a huge sum of refund as far as clubs across the country are concerned vis-a-vis service tax. Now, तो ये अमेंडमेंट क्यों आया? तब इन्होंने ये सोचा कि भाई सर्विस टैक्स में तो हमसे जितनी गलती हो गई, अब जीएसटी में हमें नहीं करना है. तो जीएसटी में बैकडोर के थ्रू इन्होंने 2021 में अमेंडमेंट लाया विच वॉज मेड इफेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिवली, और बोल दिया भाई सर्विस टैक्स में जो था तो सो था, वी आर नॉट बॉदर्ड, बट एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न्ड अ क्लब एंड द मेंबर will be treated as two separate people. तो जितने भी clubs होते हैं in the city, अगर if I was to give you an example, the Tollygunge Club Limited, the Royal Calcutta Golf Club, RCTC, so on and so forth, these are all clubs which are driven by members. तो इसमें ये कहानी थी कि भाई दोनों अलग अलग तो है नहीं, एक ही है by the doctrine of mutuality, तो इनमें जीएसटी नहीं लगना चाहिए. एंड हेंस इन्होंने ये अमेंडमेंट लाया. टुडे इस मुद्दे पे अगर मुझे अपना व्यू देना था, माय व्यू इज वेरी clear that even today, by bringing an amendment in the law, you cannot override the constitution. The doctrine of mutuality is embedded in the constitution. If they are not two people, service या supply of service होने का कोई question ही नहीं है. And secondly, इन्होंने ये amendment भी retrospectively किया, वो भी कितना सही था नहीं था, that time will say once this particular matter goes on to the Honorable Supreme Court. But it would be wrong टू से कि भाई आप जीएसटी ना दें. जीएसटी हर क्लब आज भी कलेक्ट करके दे रहा है, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लानिंग टूल्स व्हिच विल कम टू द रेस्क्यू, कंसिडरिंग दैट दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट व्हिच वाज मेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/17 अंडर 71AA is very very litigative, and it is yet to see the test of time. Now when we talk about section 7, हमारे कई सारे इसमें शेड्यूल्स दिए हुए हैं. 3 शेड्यूल दिया हुआ है. अभी मैंने आपसे विस्तार रूप में चर्चा की कि भाई कंसिडरेशन होना पड़ेगा, बट ऐसे भी सर्विसेज हैं जहां पे अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तभी भी उसे सप्लाई हम मानेंगे. ऑल ऑफ दोज एक्टिविटीज कम अंडर शेड्यूल 1. अब इसमें एक एग्जाम्पल अगर मुझे आपको देना है तो विच इज स्टॉक ट्रांसफर. आज अगर मैं कोई भी माल अपने एक यूनिट ऑफ असम से बंगाल में भेजूं तो वो सप्लाई माना जाता है. बोथ आर सेपरेट रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्संस, और जीएसटी का भुगतान होता है, एक के लिए आउटपुट एक के लिए इनपुट. ऑल द बुक्स में there may be no consideration. पहले फॉर्म F हुआ करता था स्टॉक ट्रांसफर. नाउ ऑल ऑफ दैट इज अ relic of the past. आज के दिन अगर आप पूछेंगे तो इसमें जीएसटी लगता है, एंड दैट इज वन एग्जांपल अंडर शेड्यूल 1, which is to be treated as a supply even if there is no consideration. नेक्स्ट आपका आता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट.
शेड्यूल 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। शेड्यूल 2 आपको बोलता है कि भाई जो जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहा है इन द पास्ट, कि किसको हम सर्विस समझें, किसको हम गुड समझें, अब ये प्रॉब्लम्स को खत्म करते हैं। हमने बता दिया शेड्यूल 2 में कि इन को आप गुड समझिए, इन को आप सर्विस समझिए। उसमें एक आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। पहले अगर वैट रेजिम से जो परिचय रखते हैं, उन्होंने देखा होगा कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का अगर कोई भी काम होता था तो हम सर्विस टैक्स भी दिया करते थे, वैट भी दिया करते थे। दोनों ही रेजिम्स में आपके अलग अलग वैल्यूएशन के स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दिए थे। अब जीएसटी आने से हमने देखा कि सर्विस टैक्स बोलिए, एक्साइज बोलिए, वैट बोलिए, सारा एक अम्ब्रेला में आ गया। लेकिन गुड्स और सर्विस का जो डिस्टिंक्शन था वो आज भी है। और अभी जब हम आगे चर्चा करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू पे, तब आप पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, फिर आप देखेंगे कि गुड्स और सर्विस का दोनों अलग अलग होने के कारण कैसे कैसे प्रावधान भी आपके अलग अलग हैं। तो कमिंग बैक टू दिस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में अब उन्होंने बोल दिया कि भाई ये मेरा शेड्यूल 2 में सर्विस माना जाएगा, और जितने भी प्रावधान जीएसटी के लॉ में हैं एज फार एज सर्विसेज आर कंसर्न, वही सारे इसमें लगेंगे। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पहले भी लिटिगेशन में रह चुका है और जीएसटी में भी इस पे काफी लिटिगेशन है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से एक बात मुझे ध्यान आ रही है विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। सर्विस टैक्स के रेजीम में भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया था और आज भी इनको डिफाइन करते हैं। इसमें अगर मैं आपको 2119 की डेफिनेशन पढ़ के बताऊं तो इसमें इन्होंने 14 आइटम्स को इंक्लूड किया है: कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इंस्टॉलेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं आगे नहीं जा रही हूँ। वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड सो, मैंने अगर आपका कोई भी लेबर हो ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर देयर इज ट्रांसफर। पहले रेजीम से आज के रेजीम में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है? सर्विस टैक्स के रेजीम में जब आप बात करते थे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की, तो मूवेबल हो या इमूवेबल हो उसमें कोई अंतर नहीं था। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जहां पे लेबर भी हो और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स भी हो। जीएसटी में अंडर 2119 उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि एक 14 ये एडजेक्टिव्स उन्होंने किए, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, रिपेयर, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर आप ये सारे काम करें तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में नहीं आएगा। एंड शेड्यूल 2 ने वहां पर आपको बता दिया है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज अ सर्विस। तब आपके जितने प्रावधान जीएसटी के स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में है सर्विस से रिलेटेड, वही सारे आपके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में लगेंगे। थर्ड आपका एक आता है शेड्यूल 3, जहां पर वो बोलते हैं भाई दिस विल बी ट्रीटेड नीदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो उसको हम सप्लाई के दायरे में नहीं मानेंगे। थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन है बिकॉज हम आज बैक टू बेसिक्स में हैं। आई विल नॉट बी गेटिंग इनटू दैट। सो ये कहानी हो गई हमारे सप्लाई रिलेटेड, विच इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। एंड वी डिस्कस्ड इन डिटेल्स दैट क्या 7 एक्टिविटीज वहां पे मेंशन्ड है। सेकंड, कंसिडरेशन होना चाहिए। थर्ड, दे हैव टू बी 2 पीपल एंड फोर्थ, इट हैज टू बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एंड कैसे आपके 3 शेड्यूल सेक्शन 7 में अपेंडेड हैं, जहां पे आपको विस्तार रूप में उन्होंने अलग अलग सप्लाईज का वर्णन किया है। मूविंग फॉरवर्ड इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सर्विस टैक्स से जो परिचय रखते हैं, आपने सुना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। एक्साइज में आपने ये देखा, सुना था कि भाई व्हेन गुड्स लीव द प्रेमिसेस तब एक्साइज का भुगतान होता है। द टैक्सेबल इवेंट वाज मैन्युफैक्चर। सर्विस टैक्स जीएसटी के केस में देयर इज समथिंग कॉल्ड द टाइम ऑफ सप्लाई। एंड व्हेन आई कम टू द टाइम ऑफ सप्लाई, द रेलेवेंट सेक्शंस आर सेक्शन 12 एंड 13 ऑफ द जीएसटी एक्ट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नथिंग इज ओवर द लॉ। यू शुड नॉट ओ योर अलीजेंस टू द क्लाइंट, not to the department, not to the WhatsApp and the social media. You should owe your allegiance to law. और जितना आप लॉ को पढ़ेंगे उतना ही आप देखेंगे कि आपको और अंदर जा जाके उतनी ही आपको क्लैरिटी उस सब्जेक्ट में आएगी। So coming back to the section 12 which talks about the time of supply of goods, और हमारा एक आता है section 13 which is the time of supply of service। सर्विस के केस में शुरू करते हैं, जहां पे वो बोलते हैं कि इन तीनों में से जो भी अर्लीस्ट है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है?
टाइम ऑफ सप्लाई वो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है जब आपको सरकार को अपने टैक्स का भुगतान करना है। और वाजिब सी बात है, अगर आपने टाइमली नहीं किया तब आपके ऊपर इंटरेस्ट के प्रोविजंस लगेंगे। तो सर्विस के केस में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मुझे एक लीगल ओपिनियन देना है और लीगल ओपिनियन मैंने 1 अप्रैल को दे दी, कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक मैंने इसका इनवॉइस नहीं रेस किया। इसका इनवॉइस मैंने जाके रेस किया इन द मंथ ऑफ मे। तब मुझे इसका टैक्स का पेमेंट कब करना है? क्या मुझे उसका टैक्स का पेमेंट करना है 1 अप्रैल को, या मुझे उसका टैक्स का पेमेंट करना है 1 मई को? इस चीज के लिए हम लोग देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई को, विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 13 इन केस ऑफ सर्विसेज। सो ये क्या बोलता है? नंबर 1, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग: the date of issue of invoice by the supplier if the invoice is issued within a period prescribed under section 31, or the date of receipt of payment, whichever is early. B, the date of provision of service if the invoice is not issued within the period as specified under section 31. C, the date on which the recipient shows the receipt of service in his books in case where the provisions of A and B do not apply. इसमें अब देखिए, जब हम सेक्शन 13 पे जाते हैं, इन्होंने सेक्शन 31 का भी उल्लेख किया है। सो वी विल ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस व्हाट इज सेक्शन 31। टॉस माने टाइम ऑफ सप्लाई, जैसे अभी मैंने आप सबको बताया, इज दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको टैक्स का भुगतान सरकार को करना है। तो मेरे एग्जाम्पल में, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने लीगल ओपिनियन अपने क्लाइंट को रेंडर कर दी ऑन द 1 अप्रैल 2026। फर्स्ट केस सिनेरियो, मैंने इसका इनवॉइस रेस किया इन द मंथ ऑफ 1 या चलिए 5 मई को। तो और पेमेंट इन दोनों इस केस में मान लेते हैं अभी तक मुझे नहीं मिला है। सो माय क्वेश्चन टू यू वुड बी, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? 1 अप्रैल जब मेरी सर्विस कंप्लीट हो गई, या 5 मई जब मैंने अपना इनवॉइस रेस किया? माइंड यू, इस केस में मुझे अभी तक कोई भी पैसे अपने सर्विस के अगेंस्ट नहीं मिले हैं। इस केस में my time of supply will be my 1 April and not 5 May. Why? Because here the law is very clear that you have to raise the invoice within a period of 1 month from the date of rendition of service. और क्योंकि मैंने 5 मई को करा, मेरा 30 डेज का टाइम पीरियड निकल गया, तो अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग हो गया माई डेट ऑफ रेंडिशन ऑफ सर्विस, विच वॉज माई डेट 1 April। यहाँ पर जब मैंने सेक्शन 31 का उल्लेख किया, दैट इज रिलेटिंग टू टैक्स इनवॉइस। सर्विस के केस में सेक्शन 31 is very clear that you have to raise an invoice within a period of 30 days from the date of completion of your service. सेकेंड केस, मैंने सर्विस दे दी 1 April को और मैंने इनवॉइस रेस किया है 1 May को। तब मेरा टॉस क्या होगा? Because I have raised the invoice within a time period of 30 days. For the sake of simplicity, मान लेते हैं मेरी सर्विस कंप्लीट हुई थी 2 April को और मैंने इनवॉइस रेस कर दिया विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑन द 1st। तब मेरा टाइम ऑफ सप्लाई में हो जाएगा। वाई? बिकॉज मैंने विद इन 30 डेज इनवॉइस रेस कर दिया, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई विल बी माई डेट ऑफ इनवॉइस एंड नॉट माई डेट ऑफ रेंडिशन ऑफ सर्विस। इन अदर वर्ड्स, बाय आर्टिफिशियली or by postponing the issue of invoice, you cannot artificially postpone your time of supply. तो अगर आपने 30 डेज के टाइम फ्रेम में किया, 30 डेज कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 31 में। तब आपका द डेट ऑफ इनवॉइस विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन आपने सोचा नहीं नहीं, अभी तो इसका इनवॉइस नहीं रेस करते हैं, क्लाइंट से पैसे आने नहीं है, सर्विस आप दे के बैठे हैं। नहीं, दैट विल नॉट बी अलाउड। आपके 30 डेज का टाइम जैसे ही खत्म होगा, आपका टाइम ऑफ सप्लाई हिट हो जाएगा। और अगर आपने इनवॉइस नहीं रेस करी है, तब आपने जिस दिन अपने सर्विस को कंप्लीट किया है, दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। इन अदर वर्ड्स, द लॉ इज वेरी क्लियर दैट बाय delaying the issue of invoice, you cannot artificially postpone your liability, which is your time of supply. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि कैसे आप डिटर्मिन करें कि हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। वैसे ही जब हम गुड्स के केस में बात करें,
गुड्स के केस में अगेन सेक्शन 13 था, सर्विस के केस में। गुड्स के केस में है आपका सेक्शन 12, जहां पे वो बोलते हैं दैट द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू। मैंने कुछ समय पहले आपको बोला था कि गुड्स के केस में गुड्स ट्रैवल विद द इनवॉइस, सर्विस के केस में 30 डेज का टाइम लिमिट दिया है, गुड्स के केस में गुड्स हैव टू ट्रैवल विद द इनवॉइस। तब आपको करना है और द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। और ये भी हम जानते हैं, पहले आपको जब एडवांस मिलता था, पहले प्रावधान था चाहे गुड्स हो या सर्विस हो आपको जीएसटी उस पे देना है। अब लॉ बदल गया, अब सर्विस के केस में है, गुड्स के केस में आपका नहीं है। So this is as far as your time of supply was concerned. एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, अब जो दो मुद्दे मुझे आपसे डिस्कस करने हैं, एक है आपका वैल्यू और दूसरा आपका आ गया प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई पे मैंने इनफैक्ट शुरुआत में आपसे डिस्कशन थोड़ी बहुत की थी व्हेन आई स्पोक अबाउट इंटरमीडियरी। पहले वैल्यूएशन पे आते हैं। वैल्यू किसको बोलते हैं भाई, किस पे आपको जीएसटी देना है। तो अगेन जीएसटी में माय मेंटर हैज ऑलवेज टॉट मी दैट कॉमन सेंस नहीं लगाना है। जीएसटी में जब भी लगे ना कि भाई ऐसा लग रहा है होना चाहिए, कॉमन सेंस ये बोलता है, वो तब समझ लो बिल्कुल नहीं होना है। बिकॉज कॉमन सेंस हैज नो प्लेस इन द लॉ एंड ऑल्सो लॉ इज डिवॉइड ऑफ लॉजिक। तो कभी भी ये ना सोचे कि ये तो लॉजिकल नहीं लग रहा है। लॉ क्या बोलता है, आपको प्रावधान को समझना है, प्रावधान को आपको इंटरप्रेट करना है। हाँ, आप अर्स्टवाइल रेजीम से हेल्प लीजिए, आप जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स की एक्सपीरियंस से हेल्प लीजिए, बट सबसे पहला नियम जीएसटी में है कॉमन सेंस नहीं लगाना है। एंड ये स्पेशली मैं बोलती हूँ जब हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटर्मिन करते हैं। बट बिफोर आई कम टू द प्लेस ऑफ सप्लाई, लेट्स नेविगेट थ्रू द वैल्यू। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन आपका एज फार एज वैल्यू इज कंसर्न इज सेक्शन 15। अब बहुत ही ऊंधा सेक्शन है। सेक्शन 15 आपको क्या बोलता है, काफी सारी चीजें, मैं एक बार 15(1) से आपको रूबरू कराऊंगी। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ shall be the transaction value, which is the price actually paid or payable for the said supply of goods or services of both, where the supplier and the recipient are not related, and the price is the sole consideration for the supply. In other words, यहाँ पे again lot of tenets in this particular section 15(1). सबसे वो पहले बोल रहे हैं कि वैल्यू, आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम असेसेबल वैल्यू मान लेंगे। मान लेते हैं मैं एंड मिस्टर एक्स एक असाइनमेंट पे एंटर करते हैं। मिस्टर एक्स ने बोला शिवानी जी आपको ये ओपिनियन बनाना है। मैंने बोला सर ओपिनियन का हमारा 2.5 लाख रुपए। ठीक है भाई, मैंने उनको 2.5 लाख रुपए, तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू असेसेबल वैल्यू माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब माना जाएगा, वेयर द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड। ये तभी माना जाएगा जब मेरे उदाहरण में मैं और मिस्टर एक्स आर नॉट रिलेटेड। अगेन सेक्शन 15 में रिलेटेड पार्टी किसको बोलते हैं वो डिफाइन किया गया है। एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अगर मिस्टर एक्स ये बोलते हैं कि मैम आप 2.5 लाख, मैंने बोला था 3 लाख, तो मिस्टर एक्स ने बोला मैम मैं भी आपको कुछ डिस्काउंट दे दूंगा मेरे प्रोडक्ट पे, आप एक काम करिए आप 2.5 लाख रखिए, आप 3 लाख मत रखिए। तो यहाँ पे प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। तो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी द असेसेबल वैल्यू ओनली जहां पे दो ट्विन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1, जब मैं और मेरे रिसीवर मिस्टर एक्स, दैट इज सप्लायर एंड रिसीवर, आर नॉट रिलेटेड। व्हाट आर रिलेटेड पार्टीज being defined under section 15 and where price is the sole consideration। और कुछ भी नहीं है कि भाई मैं आपको ये डिस्काउंट दूंगा या अगर आप ये वाला काम मेरा कर देंगे तो उसका मैं आपका कर दूंगा, नो। तो where these two twin conditions are not satisfied, तब आपका the transaction value may not be the assessable value and the assessing officer or the proper officer will be able to question that valuation। अब इसमें क्या क्या एडेड है, अभी कल हमारे क्लाइंट का फोन आया कि भाई मैम हमने एक ट्रांजैक्शन किया था और सामने वाले पार्टी को हमको पेमेंट करना था विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, और उन्होंने हमें पेमेंट नहीं किया मैम। उन्होंने हमें पेमेंट 3 महीने बाद किया, तो 2 महीने का हमने 12% करके इंटरेस्ट लिया। तो मैम इंटरेस्ट पे तो मैं जीएसटी ना लूँ ना। तो हमने बोला कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बोला रुकिए हमको पढ़ के बताने दीजिए। तो हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे तो कॉमन सेंस तो लगाना नहीं है, तो लॉ खोला, तो लॉ में सेक्शन 15 है वैल्यूएशन पे, तो वो खोला। तब हमने वहां पे देखा सेक्शन 15(2)(d) में
15.2 बोलता है कि भाई ये आपके वैल्यू का पार्ट बनेंगे, और 15.2 डी में बताया गया इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई, वो आपके वैल्यूएशन का हिस्सा बनेगा। तब हमने उन्हें बताया कि भाई बनेगा, तो उनको बड़ा अटपटा लगा, मैम इंटरेस्ट पे भी जीएसटी आप दिलवा रहे हैं। तो मैंने बोला भाई कॉमन सेंस लगाना नहीं है, लॉ में कोई लॉजिक नहीं है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। सो हेंस आपको ये देखना है कि कभी भी आप वैल्यू की बात करें, ये जाएगा नहीं जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरमीडियरी को लेके कुछ चेंजेस आए हैं, तो आपके ये वाले जो चेंजेस थे, जितने हमारे फाइनेंस बिल 2026 के, वेरी रिसेंटली इट रिसीव द प्रेसिडेंशियल असेंट, एंड उसके थ्रू उन्होंने कई सारे चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया है। एक आपके सेक्शन 15 में भी दिया गया है। सो इट रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द 30th of March, और उसमें कई सारे चेंजेस, और एक प्रावधान में अंतर आपके सेक्शन 15 में भी आया है डिस्काउंट को लेकर। तो उस पे अभी चर्चा नहीं करेंगे, बिकॉज अगेन इट्स अ लिटिल टेक्निकल, ये बैक टू बेसिक सेशन है, सो मे बी वी कैन रिजर्व दैट डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट सेशन। तो बोलने का तात्पर्य यही है कि जब भी आप कोई भी वैल्यूएशन को देख रहे हैं कि भाई इसको पार्ट बनाना है कि नहीं बनाना है, ऑलवेज रेफर टू द सेक्शन। अब इसमें उन्होंने बोला है द वैल्यू शैल इंक्लूड any taxes, duties, etc. at the time of law other than what is charged under this law, any amount that the supplier is liable to pay in relation to supply but has been incurred by the recipient and not included in the price, incidental expenses, late fee, interest, any subsidy, so on and so forth. और डिस्काउंट को लेकर इन्होंने एक चर्चा की है। अब इसमें whenever I talk about valuation, एक प्योर एजेंट की कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे लगता है आप सबको परिचित होना चाहिए उससे, और एक होती है वैल्यूएशन रूल्स। आपको मैंने सेक्शन 15 जब मैं पढ़ रही थी, मैंने आपको ये बताया कि 15 के प्रावधान तभी लगते हैं व्हेन बायर एंड द सेलर और द रेसिपिएंट एंड द सप्लायर आर नॉट रिलेटेड। तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, मैम अगर वो रिलेटेड हैं तो क्या हुआ? रिलेटेड में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी आ गए, एंड वे प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। आपने अभी कॉर्पोरेट गारंटी को लेके बहुत चर्चा सुनी होगी, भाई डायरेक्टर्स कॉर्पोरेट गारंटी, सॉरी होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी के लिए देते हैं, होल्डिंग सब्सिडियरी भी रिलेटेड हो गए, तो क्या मैम सेक्शन 15 लगेगा? तो नहीं, उसमें हमारे वैल्यूएशन रूल्स दिए हुए हैं अलग अलग केस सिनेरियोज में, जहां पे आपके 15 की वैल्यूएशन नहीं लगती है, देन यू कैन रेफर टू द रूल्स। अब उसमें जैसे रिलेटेड पार्टी के केस में दिया हुआ है कि आर्म्स लेंथ प्राइस आपको देखना है। इन केस ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी अलग रूल्स आपके आए हुए हैं। वैसे ही जब हम एक और मुद्दे पे बात करते हैं, विच इज आपका प्योर एजेंट, विच अगेन इज अंडर रूल 33। अब प्योर एजेंट के केस में सबको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि भाई प्योर एजेंट हम बोलते किसको हैं? अब प्योर एजेंट से आप, एक प्योर एजेंट हैज बीन डिफाइंड अंडर द लॉ, और वहां पर वो बोलते हैं 7 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी अगर मैं आपको समझाऊं कि प्योर एजेंट किसको बोलते हैं, तो सी फॉर एग्जाम्पल एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे क्लाइंट को उसके जीएसटी का पेमेंट करना है, बट कोई कारणवश उसके नेट बैंकिंग में प्रॉब्लम हो गई, तो वो मुझे बोलता है मैम एक बार आप पेमेंट कर दीजिए, जितना आपने पेमेंट किया उतना आप रीइंबर्समेंट ले लीजिएगा। तो मैं चालान के थ्रू उनका पेमेंट करती हूँ, चालान उनके ही नाम पे जनरेट होता है, उनके ही पेमेंट पोर्टल पे मैं पेमेंट करती हूँ। अगर 1000 रुपए का चालान है, मैं 1000 ही रुपए लेती हूँ, मैं 1000 एक भी नहीं लेती हूँ। ये क्लासिक केस हो गया प्योर एजेंट का। इफ यू आस्क मी, इन माय प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, ये सप्लाई का पार्ट ही नहीं होता है। लेकिन कल को अगर मैंने एक क्लाइंट के साथ काम किया और एक ऑडिट का असाइनमेंट लिया, मैंने बोला भाई मेरे 2.5 लाख का फीस है, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। मैंने बोला इसके अलावा जितना भी आने जाने का खर्चा रहेगा वो भाई आप दे दीजिएगा मुझे अलग से, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। नो, दिस विल नॉट बी अलाउड। एनी एक्सपेंसेस विच आर इंसिडेंटल, उसमें आपको देना होगा, ये हमने अभी सेक्शन 15(2) में पढ़ा। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कंडीशन प्योर एजेंट में रहता है, दैट द टाइटल टू द गुड्स और सर्विसेज जो कि एज अ प्योर एजेंट आप इनकर करते हैं और जिसकी रीइंबर्समेंट आप लेते हैं अपने रेसिपिएंट से, उसका टाइटल शुड ऑलवेज बी विद द रेसिपिएंट। मेरे एग्जांपल में चलान इज इन द नेम ऑफ माय रेसिपिएंट, लेकिन जब मेरा बंदा ऑडिट के लिए जा रहा है, बस की टिकट हो या मेट्रो की टिकट हो, वो उनके नाम पे नहीं रहती है, सो दैट विल नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ प्योर एजेंट। So this was a brief overview as far as the valuation is concerned. तो हमने सप्लाई पढ़ा,
सेक्शन 7। फिर हमने बात की टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स 12, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज 13। फिर हमने कुछ वैल्यूएशन के प्रोविजन समझे सेक्शन 15 पे। उसके पहले हमने 59 और आईटीसी पे बात की। आईटीसी में हमने समझा हमारा सेक्शन 16 एंड 17 का प्रावधान। अब मैं लास्ट अपने मुद्दे पे आती हूँ, विच इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। भाई ये प्लेस क्या होता है? अब आपने पहले भी सुना था जीएसटी के पहले सीएसटी। सीएसटी माने सेंट्रल सेल टैक्स की भाई इंटर स्टेट सप्लाई हो तो गुड्स मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, तो हम लोग इसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। माने फिजिकली गुड्स हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। सर्विस के केस में तो भाई कोई था नहीं आपका, वो तो ऐसे भी यूनिवर्सल लॉ था। अब जीएसटी के केस में आपको देखना है सेक्शन 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। अगेन आई रिपीट, सेक्शन 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट विच गोज ऑन टू डिफाइन कि हम इंटर स्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं। तो इंटर स्टेट सप्लाई वो बोलते हैं, उसी को बोलते हैं वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स shall be treated as an interstate supply. Mind you, interstate देखने के लिए दो चीज वो बोल रहे हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। कहीं पे भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट की बात नहीं आई है। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मैं एक एडवाइस दे रही हूँ टू अ क्लाइंट हु सिटिंग इन महाराष्ट्र, मुझे क्लाइंट का लोकेशन नहीं देखना है, मुझे पॉस देखना है, प्लेस ऑफ सप्लाई और मेरी लोकेशन। लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है, अगेन यू नॉट सपोज टू अंडरस्टैंड इट विथ कॉमन सेंस। जीएसटी में कॉमन सेंस लगाना ही नहीं है। आप अपने सेक्शन 2 में जाके लोकेशन ऑफ सप्लायर की डेफिनेशन पढ़े। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस वो नहीं है तो कई उसमें प्रावधान में सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इसमें आ गया पॉस। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अगर इंटर स्टेट है तब आई लगेगा, इंट्रा है तब सी एन एस लगेगा। अब आपको भी पता है जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। जो स्टेट उस टैक्स का उस पर्टिकुलर सर्विस को कंज्यूम कर रही है उसी को उसका मुनाफा या बेनिफिट मिलना चाहिए। तो अगर आपने बंबई की जगह बंगाल को दे दिया तो भाई आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के नुकसान हो गया जो आपको नहीं कराना था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब अभी तक हमने बात सीजीएसटी एक्ट की कर रहे थे, अब हम आते हैं आपके आईजीएसटी एक्ट के। अब आईजीएसटी एक्ट में आपके दो कंडीशन सर्विसेज सेक्शंस हैं। सेक्शन 12 जो कि डिफाइन करता है पॉस इन केस ऑफ वे बोथ द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट आर इन इंडिया। एंड एक आपका आता है सेक्शन 13 जो कि बताता है व्हेन वन ऑफ द पार्टीज इज आउटसाइड इंडिया। सो अगेन मैं आपको बता रही हूँ पॉस क्यों इंपॉर्टेंट है इंटर या इंट्रा देखने के लिए। ये आपके सेक्शन 7 में दिया हुआ है कि भाई ये दोनों चीजें अगर अलग अलग स्टेट में है तब ये इंटर है। अब हम लोग पॉस देखने के लिए जाते हैं सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। माइंड यू, सेक्शन 7 बोलिए, 12 बोलिए, 13 बोलिए, दीज आर ऑल एज फार एज योर आईजीएसटी एक्ट इज कंसर्न। प्लेस ऑफ सप्लाई, अगेन कॉमन सेंस नहीं लगाना है। इट इज अ आर्टिफिशियल डेस्टिनेशन विच हैज बीन गिवन अंडर द लॉ। मेरे एग्जाम्पल में जब मैंने आपको बताया कि एज अ सीए मैं सर्विस दे रही हूँ टू अ क्लाइंट इन महाराष्ट्र, मेरे लिए मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। तो मेरे आरटीपी का लोकेशन अगर महाराष्ट्र है, मेरा लोकेशन अगर बंगाल है, दोनों सेपरेट स्टेट्स में हो गए, तो मुझे इसमें आईजीएसटी लगाना है, क्योंकि पर सेक्शन 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, बिकॉज दीज आर टू सेपरेट लोकेशंस, यहाँ पे मुझे इंटरस्टेट सप्लाई मानना पड़ेगा। लेकिन क्या हर केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है? नहीं। अलग अलग केस सिनेरियोज में इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई को कैसे डिटरमिन किया जाएगा। जैसे अगर आपने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्लेस ऑफ सप्लाई की बात की, मान लेते हैं मैं हूं एक इंटीरियर डिजाइनर और मुझे किसी का होटल इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ, आर्किटेक्चर के साथ सारा सर्विस देना है जो कि है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, लेकिन मेरे आरटीपी रजिस्टर्ड हैं इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर मेरा पॉस सप्लायर का क्या है? कोलकाता, बंगाल। अब मेरे रिसीवर का क्या है? यहाँ पर प्रॉपर्टी है उनकी महाराष्ट्र में, लेकिन वो रजिस्टर्ड हैं राजस्थान में। तो अगेन एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12 इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपका पॉस हो जाएगा लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड नॉट ऑफ दैट ऑफ द आरटीपी। तो यहां पर मुझे आईजीएसटी चार्ज करना होगा, नॉट बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट माय आरटीपी इज लोकेटेड इन राजस्थान, बट बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट द प्रॉपर्टी is located in Maharashtra. So when I charge my tax, my POS will be Maharashtra, and hence the Maharashtra government will get the collection of this tax and not the
राजस्थान। हो सकता है राजस्थान बैठे आपके क्लाइंट बोले कि भाई महाराष्ट्र में मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, मुझे तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, आप काइंडली एक काम करिए, आप इसका राजस्थान करिए। आप वो नहीं करेंगे बिकॉज दैट विल बी एन इनकरेक्ट टैक्स, क्योंकि जहां इस सरकार द महाराष्ट्र गवर्नमेंट शुड हैव गॉट द कलेक्शन, आपके केस में आप राजस्थान को भेज रहे हैं। वैसे ही कर करके अलग अलग सर्विसेज के केस में आपका दिया हुआ है। व्हेन वी टॉक अबाउट 13 में आपका पॉज दिया हुआ है, जहां पर आपके लोकेशन और आपके सॉरी हाँ द रिसीवर एंड द सप्लायर आर इन टू सेपरेट कंट्रीज, देन आपका सेक्शन 13 लगेगा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आया है जो मैंने एकदम शुरुआत में आपको कही थी। इंटरमीडियरी फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी हैज बीन डिफाइंड अंडर द जीएसटी एक्ट एज अ कमीशन एजेंट। आज मैं अगर एक कमीशन एजेंट हूं और मैं सर्विसेज दे रही हूँ टू ऑल माई क्लाइंट्स हु आर सिटिंग इन सिंगापुर, लंदन एटसेट्रा, फॉर हेल्पिंग देम डेवलप अ मार्केट इन इंडिया, तो फॉर द लॉन्गेस्ट हमें ये कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो मेरा एक्सपोर्ट होगा। वाई? क्योंकि भाई मेरा क्लाइंट वहां बैठा है, मैं तो कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज ला रही हूँ, लेकिन नहीं। प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 13(8) आपको बोलता था विल बी द लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। तो मेरे केस में मेरा लोकेशन क्योंकि बंगाली था, ये एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। अब आप पूछेंगे मैम एक्सपोर्ट किसको बोलते हैं? अगेन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, दोनों ही आपके आईजीएसटी एक्ट में डिफाइंड हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सिंपली मींस टेकिंग द गुड्स आउटसाइड द कंट्री, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करते हैं तब वहां पे कुछ प्रावधान हैं जो कि आपको फुलफिल करने पड़ते हैं। One amongst them is that you should get foreign currency, and you and the place of supply, the place of supply has to be outside India and you have to be in India. So again, coming back to the commission agent example, क्योंकि मेरा place of supply जो कि सेक्शन 13 के अनुसार निर्धारित था इन इंडिया, वो मेरा एक्सपोर्ट नहीं माना गया। इसी को लेकर अभी अमेंडमेंट इफेक्टिव हो गया है फ्रॉम द 30th of March। इस एग्जाम्पल में नाउ द प्लेस ऑफ सप्लाई विल नाउ बी लोकेशन आउटसाइड इंडिया एंड हेंस इट विल बी treated as an export of service. A little bit of a technical discussion, someone who's not initiated on the subject may find it difficult. So इसलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पे ही स्टॉप करूंगी। Another 2-3 minutes, क्योंकि हम आज 1st of April पे खड़े हैं। There are a few important factors that one should keep in mind when we talk about GST. Number one, LUT, GST में अंडर सेक्शन 16 ऑफ द IGST एक्ट एक्सपोर्ट आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हैं, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करने के लिए एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपको लगता है, फेलिंग विच आप नहीं कर पाएंगे। So every assessee should apply for his or her letter of undertaking on the portal. It is an activity of 5 minutes which can be done. उसके बिना अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो without payment of tax it will not be considered as an export. द सेकेंड टेक अवे, पोर्टल पे कई बार देखते हैं डायरेक्टर्स चेंज नहीं किए जाते, कंपनी में चेंज हो जाते हैं। ओटीपी के लिए, इसके लिए बहुत मारामारी होती है। 1st of April अपने पोर्टल पे जाइए, सारे सिग्नेटरीज का नाम, उनके फोन नंबर, ईमेल एड्रेस वेरीफाई करिए। जहां पे आपको लगता है कि भाई चेंज करना है, काइंडली चेंज करिए। आज से नया सीरीज इनवॉइस शुरू होगा अंडर जीएसटी। यू हैव टू मेंटेन अ सीरीज ऑफ इनवॉइस। आप अलग अलग रख सकते हैं, एक्सपोर्ट के लिए अलग, टैक्सेबल सप्लाई के लिए अलग, बट इफेक्टिव फ्रॉम 1st of April न्यू सीरीज शुड बी मेंटेन। हमने बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको बताया कि पोर्टल पे आईटी से रिलेटेड बहुत तामझाम चलता है। योर बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। चाहे आपका रिक्लेम रजिस्टर हो, चाहे आपका ई क्रेडिट रजिस्टर हो, चाहे वो आपका ब्लॉक क्रेडिट हो, जितने आपके पोर्टल पे बैलेंसेस दिख रहे हैं उसका हु बहू रिकंसिलिएशन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी होना चाहिए। एंड दिस कैन हैपन ओनली इफ यू हैव डन योर जर्नलिंग थ्रू आउट द ईयर इन द करेक्ट मैनर। नंबर 4, कई ऐसे पोर्टल्स पे नोटिसेस आ जाते हैं जो कि आमतौर पे असेसी देखना भूल जाते हैं। कई सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो आप जिनसे ये पता कर सकते हैं। तो अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए जीएसटी देखते हैं, काइंडली देख लीजिए ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया हो जो कि आपकी नजर से निकल गया हो। Again, when we talk about some services like GTA restaurant services, GTA के केस में अगर आपको फॉरवर्ड चार्ज में जाना है या रिवर्स चार्ज में एनेक्स्चर्स होते हैं, अगेन रेस्टोरेंट के केसेस में होते हैं जो कि आपको फाइल करना था टिल द 31st, वो हुआ है कि नहीं वो आप देख लिया करिए।
And last but not the least, GST 80 का निर्माण हो चुका है, and the appeals have to be filed for all the orders which have been received till the 30th. And जोर शोर से काम चल रहा है. If you have any appeals which are to be filed before GST 80, now is the time that you prepare your documents and make the filing. कुछ ऐसे orders जो आए हुए हैं लेकिन GST 80 का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए आपने अभी तक नहीं फाइल किया था. You have to make sure कि आप उसका प्री डिपॉजिट कर दें. अगर आपने 10% हम फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी के पहले प्री डिपॉजिट करते हैं, बाकी 10 हम बाद में करते हैं. अगर आपने सेकंड वाला प्री डिपॉजिट नहीं किया, देन द डिपार्टमेंट कैन गो इन फॉर अ डायरेक्ट रिकवरी, जो हाल फिलहाल एक असेसी के साथ हुआ. उन्होंने अपना प्री डिपॉजिट नहीं किया, वो बैठे थे कि भाई 30 जून तक का समय है तो हम फाइल कर देंगे, तो उनके जितना कैश लेजर में पैसा था सारा डिपार्टमेंट में जब्त कर लिया. तो प्री डिपॉजिट कर दीजिए एंड इंटीमेट द डिपार्टमेंट कि भैया हम GST 80 में अपनी अपील को फाइल करा करेंगे. With this, I would like to bring an end to my deliberations. I hope I was able to add value to all the listeners who tuned in. Thank you so much. Thank you so much, Shivani ji. There is already a question in the question box Yes, I'll just see that. from Can Mr. you- Ramesh Kumar Verma. And any of the delegate, if you'd like to I'm ask a providing question, you can export raise hand and service we can type of promote you to the management main on a box. project sitting in India to a client, then will it be export? Ramesh, your answer lies in the definition of export of service, which you have to satisfy 5 conditions which are given under Section 2 of the IGST Act. I will quickly run you through that. Number 1, you have to be in India. Your recipient has to be outside India. You have to receive the money in convertible foreign exchange. You and your recipient should not be merely related parties. And the last thing is that the place of supply has to be outside India. क्योंकि आप consultancy दे रहे हैं, the place of supply as per the provisions of Section 13 will be the location of the recipient, which is outside India. So yes, prima facie, it will be an export of service. And if you wish to make that export without the payment of taxes, you have to apply for an LUT, and then you have to make your services under LUT, and then you can proceed to make the service without charging GST to your client. Thanks a lot. Any of the participant, if you have any other questions, maybe we can take 1 or 2 questions, or you can raise hand and we'll promote you if you would like to directly ask the question. You can write in the chat box or you can raise your hand. It seems there are no further queries, Shivani ji. We, on behalf of EIRC of ICI, would like to thank you. Kindly accept our gratitude for sparing your time and sharing GST basics and as well as details for our delegate. I am very, very hopeful that this deliberation will help them to get back to the GST arena. There are definitely a lot of scopes, and GST is starting now. So in the litigation field also, there are a lot of new scope which will be growing in the GST domain. We'll be discussing the GST returns per se, practicals and basics of GST returns on next Wednesday, which is 8th at the same time, 4 p.m. So those of you who are interested, kindly join. Once again, thank you, Shivani ji, for Thank you, Mayur, and thank you the sharing entire your team of insights with the EIRC. delegates. Thank you. Thanks Thank a you. lot. Thank you so much.